Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 9th سائنس سبق نمبر 10 ہے اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی ICT ترقی کی نئی سمت. کوشچن آنسر سوالات کے جوابات دیکھیں گے. چلیے شروعات کرتے ہیں. اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی ترقی کی نئی سمت. سوال نمبر 1 ہے خالی جگہیں پر کر کے بیانات مکمل کیجیے اور بیان کی وضاحت کیجیے. پہلا سوال ہے کمپیوٹر پر کام کرتے وقت میموری کی معلومات ہم پڑھ سکتے ہیں اور ڈیش میموری میں ہم دیگر تعامل انجام دے سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے سائنسدانوں کی تحقیقات کے بارے میں تصاویر اور ویڈیوز کی پیشکش کرتے وقت ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا سوال ہے تجربے کے دوران حاصل شدہ شماریاتی معلومات پر تعامل کے ذریعے جدول اور ترمیم تیار کرنے کے لیے ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے. چوتھا سوال ہے پہلی نسل کے کمپیوٹر ڈیش کی وجہ سے بند پڑ جاتے تھے. پانچواں سوال ہے کمپیوٹر کو ڈیش نہ دی جائے تو وہ کام نہیں کرتا. پہلے کا جواب ہے کمپیوٹر پر کام کرتے وقت میموری کی معلومات ہم پڑھ سکتے ہیں اور ذاتی یعنی انٹرنل میموری میں دیگر تعامل انجام دے سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے ان پٹ یونٹ کی جانب سے آنے والی معلومات اور تیار شدہ جوابات کی ذخیرہ اندوزی کا کام کمپیوٹر کے میموری اجزاء میں کیا جاتا ہے. دوسرا ہے سائنسدانوں کی تحقیقات کے بارے میں تصاویر اور ویڈیوز کی پیشکش کرتے وقت پریزنٹیشن سافٹ ویئر مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے پریزنٹیشن سافٹ ویئر میں معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے. پریزنٹیشن کے مطابق ہم درکار سلائیڈ کو منتخب کر کے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا نقطہ ہے تجربے کے دوران حاصل شدہ شماریاتی معلومات پر تعامل کے ذریعے جدول اور ترمیم تیار کرنے کے لیے اسپریڈ شیٹ پروگرام مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال کیا جاتا ہے. وجہ اسپریڈ شیٹ پروگرام یا ایکسل مائکروسافٹ میں ترسیمی ریپرزنٹیشن ڈاٹا کی سہولت حاصل ہوتی ہے جس کی مدد سے مطلوبہ جدول اور ترمیم تیار کی جا سکتی ہے. چوتھا ہے پہلی نسل کے کمپیوٹر ڈیش یعنی گرم ہو جانے کی وجہ سے بند پڑ جاتے تھے. وجہ پہلی نسل کے کمپیوٹرز میں والوز کا استعمال کیا جاتا تھا جو حجم میں کافی بڑے ہوتے تھے اور انہیں زیادہ بجلی درکار ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ جلد گرم ہو جانے کی وجہ سے بند ہو جاتے تھے. پانچواں نقطہ ہے کمپیوٹر کو برقی طاقت نہ دی جائے تو وہ کام نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس ہے جسے برقی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. سوال نمبر 2 ہے اطلاعاتی مواصلات کے مختلف آلات کون سے ہیں؟ سائنس کے حوالے سے ان آلات کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اطلاعاتی مواصلات کے مختلف آلات کمپیوٹر اور نیٹ ورکنگ ہارڈ ویئر ریڈیو ٹیلی ویژن ٹیلی فون فکسڈ لائن اور موبائل ویژول ڈسپلے یونٹ مانیٹر پرنٹر پلاٹر موڈیم روٹر انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ وغیرہ. ان اطلاعاتی مواصلات کے آلات کے سائنس کے حوالے سے استعمال حسب ذیل ہیں. پہلا ہے ڈیمونسٹریشن یعنی ہدایت کاری. سائنس کے تجربات اور تصورات سیمولیشن اور اینیمیشن کے ذریعے مؤثر طریقے سے اور سہولت کے ساتھ بتائے جاتے ہیں مثلاً حسی نظام کے افعال. دوسرا ہے قیاس آرائی معلومات جمع کر کے اس پر تعامل کے ذریعے قیاس آرائی کی جاتی ہے مثلاً موسمیاتی سائنس. دوسرا ہے سائنسی معلومات کا حصول انٹرنیٹ ای میل نیوز گروپ بلاگز چیٹ رومز ویکیپیڈیا ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ. سوال نمبر 2 کا تیسرا ہے کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کمپیوٹر ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ چکر کے ذریعے کسی کام کو انجام دیتا ہے. ان پٹ یونٹ میں کمپیوٹر میں ہر قسم کی معلومات داخل کی جاتی ہے. اس کام کے لیے کی بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. پروسیسنگ یونٹ میں کنٹرول یونٹ ALU یونٹ اور میموری یونٹ کے ذریعے مطلوبہ نتائج کو پروسیس کیا جاتا ہے.
नताइज और तैयार शुदा जवाबात को आउटपुट यूनिट के जानिब इरसाल किया जाता है। अमूमन कंप्यूटर स्क्रीन और प्रिंटर का इस्तेमाल आउटपुट यूनिट के तौर पर होता है। इसका फ्लो चार्ट है इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस आउटपुट इंफॉर्मेशन। इसमें चौथा सवाल है साइंस और टेक्नोलॉजी में इतलाती मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कौन से हैं। अब देखिए इसके लिए सवाल वो भी हो सकता है कि वजाहत कीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इतलाती मवासिलाती टेक्नोलॉजी की अहमियत। साइंस और टेक्नोलॉजी में आईसीटी के इस्तेमाल को दर्ज झैल उन्वानात के तहत पेश किया गया है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सभी रेंज को कवर करते हैं। पहला है साइंसी मालूमात का हुसूल। आईसीटी टूल्स मसलन कंप्यूटर पर कंट्रोल रखने वाले आलात, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का इस्तेमाल रिकॉर्ड रखने और ज़ख़ीरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो फौरी और ज़्यादा दुरुस्त साबित होते हैं। दूसरा है साइंसी मालूमात का तज्ज़िया। स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स नोट्स का टूल्स का इस्तेमाल करके मालूमात का तज्ज़िया और तरसीमी यानी प्रेजेंटेशन के ज़रिए नताइज ज़ाहिर किए जा सकते हैं। तीसरा है डेमोस्ट्रेशन हिदायतकारी। साइंसी तजुर्बात और साइंसी तस्वुरात सिमुलेशन और एनिमेशन के ज़रिए मौसर तरीक़े से और सहूलत के साथ बताए जाते हैं, मसलन जौहर का नमूना और हिस्सी निज़ाम के अफ़ाल वग़ैरह। चौथा है प्रेडिक्शन यानी क़यास आराई। मालूमात जमा करके इस पर तामुल प्रोसेस के ज़रिए क़यास आराई की जाती है, मसलन मौसमियाती साइंस। पाँचवा है साइंसी मालूमात का ज़ख़ीरा। मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात का ज़ख़ीरा इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स, ब्लॉग, फोरम, रूम्स, चैट, विकीपीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के इस्तेमाल से किया जा सकता है। छठा है बाहमी इश्तराक के ज़रिए तालीमी सरगर्मियाँ। बाहमी इश्तराक के सिमुलेशन के ज़रिए तलबा को तबी मुज़ाहिर तब्दील होते हुए रुझानात के ज़रिए मालूमात दी जा सकती हैं। इंटरनेट पर मौजूद सिमुलेशन और एनिमेशन के वसाइल के इस्तेमाल और बाहमी इश्तराक के ज़रिए तालीमी सरगर्मियों को दिलचस्प और आसान बनाया जा सकता है। सातवां है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। कारों, एयरक्राफ्ट और तामीराती साख्ती जैसी सनतों को मॉडलिंग और सिमुलेशन के ज़रिए तरक्की दी जा सकती है। तीसरा सवाल है सबक रफ्तार का क़ानून, जो सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद जदवल में दी हुई मालूमात की मदद से अमर, अकबर और एंथोनी की रफ्तार का फ़ासला, ज़माने की तरसीम स्प्रेडशीट की मदद से तैयार कीजिए। नेज़ ये भी बताइए कि ऐसा करते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखेंगे। तरसीम बनाने के लिए कुछ एहतियातें हैं। पहला नुक्ता है डाटा यानी नुकात एक्स वाई की वक्त वक्फ़ा फ़ासला से मुताबिकत की जाए। इसी तरह वक्फ़ा वक्त घड़ी के वक्तों की बजाय 0, 0.5, 1, 1.5 की सूरत में कॉलम में लिखा जाए। किसी शख्स के ज़रिए तय करदा फ़ासले व मुताबिक मुतस्सिला कॉलम में रखा जाए। दूसरा, वक्त के कॉलम के मुंतखबा अदद को फॉर्मेट्स में इस तरह क्लिक कीजिए यानी होम नंबर्स, अदद को अदद का अशरी मकाम यानी 1। तीसरा है अब माउस यानी कर्सर का इस्तेमाल करके मुंतखबा डाटा सेल्स को हाईलाइट कीजिए। चौथा है इंसर्ट चार्ट्स को क्लिक कीजिए और चेंज चार्ट्स टाइप्स में डायलॉग बॉक्स से लाइन मुंतखब कीजिए और लाइन विथ मार्क्स को मुंतखब कीजिए। चौथा सवाल है कंप्यूटर की मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कीजिए। इसके पस पुश्त साइंस किस तरह कार फरमा है। इसका जवाब है डिजिटल कंप्यूटर के आगाज़ से लेकर आज तक कंप्यूटर की मरहलेवार बनावट और साख्त की बुनियाद पर होने वाली तरक्की को कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। हर मरहले पर कंप्यूटरों में अंदरूनी और बैरूनी तौर पर साख्त में तब्दीलियाँ होती रही हैं। पहला नुक्ता है कंप्यूटर की पहली नस्ल का दौरानिया 1946 से 1959 माना जाता है। इस दौर में ENIAC नामी कंप्यूटर बनाए गए थे जिनमें वॉल्व्स का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी जनरेशन में वॉल्व्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। तीसरी नस्ल में इनकी जगह ICS का इस्तेमाल किया जाने लगा।
चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। मौजूदा जनरेशन में मुतवाज़ी प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग इसकी अहम खसूसियात बन गई। दूसरा है कंप्यूटर की जसामत और क़ीमतों में भी नस्ल दर नस्ल तब्दीली होती गई। इब्तिदा में इनकी जसामत बहुत ज़्यादा होती थी और क़ीमतें भी बहुत ज़्यादा होती थी। पहली जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक जसामत के लिहाज से मिनी कंप्यूटर बनने लगे और फिर ज़ाती कंप्यूटर चौथी जनरेशन में ईजाद हुए। अंदरूनी तौर पर भी कंप्यूटर्स में तरक्की होती गई। तीसरा है मेमोरी वसाइल में भी जसामत रफ्तार में तब्दीली होती गई, यानी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी पहली जनरेशन से मैग्नेटिक कोर यानी मेमोरी दूसरी जनरेशन और फिर सेमीकंडक्टर्स मेमोरी तीसरी जनरेशन में तब्दीली होती गई। चौथा है पहली जनरेशन से लेकर कंप्यूटर्स के प्रोग्रामों में भी बतदरीज तब्दीलियाँ होती गई। पहली जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिहाज से इस्तेमाल होने वाली मशीन लैंग्वेज ज़ीरोज़ और वंस में और बाद में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। दूसरी जनरेशन में ऊंचे दर्जे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होने लगा, जैसे यूज़र फ्रेंडली। और फिर तीसरी जनरेशन में ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ। पांचवा नुक्ता है पहली दो जनरेशन में इनपुट और आउटपुट पंच कार्ड्स और टेप्स पर मबनी होते थे। तीसरी जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर मुतारिफ कराए गए। चौथी जनरेशन में जीयूआईज इंटरनेट के लिहाज से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के इस्तेमाल मुतारिफ कराए गए। छठा नुक्ता है आरपानेट, जो आजकल के इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जनरेशन के आखिर में शुरू किया गया, जबकि चौथी जनरेशन लैन लोकल एरिया नेटवर्क राइज किया गया। सातवां है साइंस का कंट्रीब्यूशन। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने कंप्यूटर के मैदान में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। ये साइंस की टेक्नोलॉजी की ही देन है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे वॉल्व्स, ट्रांजिस्टर, आईसीज, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी वसाइल का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा है नेटवर्क टेक्नोलॉजी और वसाइल मुतारिफ कराए गए। सवाल नंबर 5 है अपने पास मौजूद मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी के किन वसाइल की मदद लेंगे। इसका जवाब है इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी के दर्ज झैल वसाइल का इस्तेमाल अपने पास मौजूद मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करेंगे। पहला है कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर का इस्तेमाल ब्लॉग के ज़रिए, लिखने के लिए, फ़ोरम और चैट रूम के ज़रिए, बहस के ज़रिए और प्रेजेंटेशन तैयार करके। दूसरा है टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल के ज़रिए ज़बानी मालूमात और सोशल मीडिया की मदद से बहस व मुबाहिसा करके। तीसरा है टेलीविज़न पर बहस व मुबाहिसा मुकाबलों में हिस्सा लेकर। सवाल नंबर 6 है इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दरसी किताब की कोई 3 इकाइयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। इनकी तैयारी में आप जिन मराहल से गुजरे हैं इसकी जदवल तैयार कीजिए। इसका जवाब है पहला है फ़्लो चार्ट, उन्वान के अहम नुकात को यकजा कीजिए। दूसरा है अपने उन्वान को कवरेज करने के लिए प्लान बनाइए, जैसा क्या कहना है, कितना कहना है और कैसे कहना है। तीसरा है मुंतखब की गई स्लाइड पर मतलूबा मालूमात तरतीब से टाइप कीजिए। चौथा इस मुताल्लिक़ा तस्वीर खाके को वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करके तलाश कीजिए। डाउनलोड करते हुए मुनासिब फ़ोल्डर्स में सेव कर लीजिए। पांचवा है होम न्यू स्लाइड का इस्तेमाल करके स्लाइड को मुनासिब प्लेस होल्डर्स में दाखिल कीजिए, मसलन टेक्स्ट, जदवल, तस्वीर, वीडियो। छठा है डिज़ाइन टैब की मदद से थीम, रंग और फ़ॉन्ट का इंतखाब कीजिए। सातवां है एनिमेशन टैब की मदद से स्लाइड यानी ट्रांजिशन के लिए एनिमेशन दीजिए और स्लाइड शो कीजिए। सवाल नंबर 7 है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आपको किन तकनीकी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इन दुश्वारियों के हल के लिए आपने क्या किया। इसका जवाब है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल तकनीकी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला नुक्ता है कंप्यूटर के इस्तेमाल के दौरान अचानक बरक़ी पावर की सप्लाई बंद हो जाए या किसी वजह से पावर सप्लाई कम ज़्यादा होने लगे तो महफूज मालूमात ज़ाय हो जाती है।
दुश्वारी का हल है, पहला है वर्किंग फ़ाइल आसानी से महफूज़ किए जा सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर में यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई निज़ाम के तहत इतनी मोहलत मिल जाती है कि अचानक बरक़ी पावर की सप्लाई बंद हो जाए तो फ़ाइल महफूज़ की जा सके। दूसरा है, अक्सर लो कनेक्टिविटी की वजह से तस्वीरों को डाउनलोडिंग में दुश्वारी पेश आती है। दुश्वारी का हल, लोअर रेजोल्यूशन और छोटी जसामत की फ़ाइल सर्च करें और फॉर्मेट तब्दील करके अपलोड करें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।